اب کسی ذہن میں کوئی بات ہوگا؟ کیا دہیج دینا لعنت اور حرام ہے؟ ان کا سوال یہ کیا دہیج لینا لعنت اور حرام ہے؟ نہیں بھائی، کوئی حیثیت والا آدمی ہو تو اپنی بچی کو ضرور کچھ نہ کچھ دے گا، باپ کا دل ہوتا ہے، لیکن دہیج کی مانگ کرنا یہ واقعی لعنت ہے کہ کیونکہ نبی نے فرمایا آخری خطبے میں کہ کسی مومن کو یہ اب جائز نہیں کہ زبردستی کسی کا مال جو ہے وہ رکھے. تو اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یا اشارے دینا اور یا توقع رکھنا یہ سب میرے نزدیک تو بھیک کے زمرے میں آتا ہے. اس لیے بالکل اس سے تو بچیں. اور اگر کوئی اپنی بچی کو دیتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی بچیوں کو ہی دیں اور لوگوں کے لیے جو گھر کے لوگ ہوں ان کے لیے تو طوائف نہ ہو. وہ دے بھی تو ان کے برابر انہیں واپس کریں یا ان کی فیس کریں. کیا شادی میں لفافے لینا دینا بدعت ہے؟ کیونکہ سوال یہ کہ شادی میں لفافے لینا دینا بدعت ہے. نہیں بھائی، بدعت کی ڈیفینیشن میں شاید پچھلے ہفتے اور پچھلے ہفتے بتاتی تھی. یہ دینی معاملوں میں چیزیں آتی ہیں، یہ روایتی چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے میں چلی آ رہی ہیں علاقائی حساب سے. توحفوں کا لینا دینا ہے ایک حساب سے، بالکل کوئی بدعت نہیں ہے اس طرح کی. اور توحفوں کو لینے دینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. بالکل لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے. کیا کسی مرحوم کو جنتی کہنا ٹھیک ہے؟ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کسی مرحوم کو جنتی کہنا ٹھیک ہے. بھائی مرحوم میں اپنا عام نہیں ہے جس پہ رحم کیا جائے. آپ کس طرح پہلے کہہ دو. میرے نزدیک تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. معاشرے میں چل گئی، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس لفظ کا کہ یہ لفظ کی میننگ کیا ہے. کس پہ رحم کس پہ غضب ہوگا تو اسے پتہ ہے جو قبر میں چلا گیا ہے، پھر آخرت میں سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. میرے نزدیک تو مناسب ہے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام میں بھی ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے گھر گئے. ان کی ماں جو ہے وہ یہی بیان کر رہی تھی کہ میرا بیٹا تو جنت میں گیا. کسی بیت میں گئے تو نبی نے ٹوک دیا کہ کیا کہہ رہی تھی، ابھی کیا پتہ. اور دیکھو خود حضور تشریف لے گئے اپنی صحابی، لیکن حضور نے ٹوکا اسے کہ بھائی بالکل کسی جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، سب اللہ کے ہاتھ. مطلب یہاں تک کہ حضور نے کہا میں خود بھی میرا کیا بنے گا یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے. اتنی بڑی بات تھی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. ہم تو یہاں فیصلے کر دیتے ہیں لوگوں کے، یہ جنتی ہے، یہ شہید ہے، یہ وہ اور وہ. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ کہہ دو آپ، اس میں کوئی حرج نہیں. زمزم پینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سوال یہ زمزم پینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ عام بالکل جو ہے عوام پانی پیتے ہو، کبھی کھڑے ہوئے کبھی بیٹھ کے. یہ لوگوں نے بلوجی اڑا دیا کہ زمزم جو ہے وہ کھڑے ہو کے پینا ضروری ہے. اصل میں تو اس وقت تھا ہی وہاں زمزم. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمزم کے کنویں پہ کھڑے تھے، وہاں بہت زیادہ مٹی اور کیڑا وہ چوڑا تھا، تو حضور نے نیچے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، حضور نے کھڑے ہو کے زمزم پیا. ایک بار ایک صحابی کے گھر گئے، میرے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ. تو حضور نے جب پانی کا پوچھا تو انہوں نے حضور وہاں مشق لٹک دی. دیکھو حضور کی آج جی یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی لا کے دے دے، ہم تو آرڈر چلاتے ہیں ایک دم کسی کا مہمان ہو کے جائے. حضور اس مشق کا خود گئے اور حضور نے منہ مبارک لگا کے اس سے پانی پیا. بلکہ ان صحابیہ نے وہ مشق کا اگلا حصہ ہو جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا تھا، لعاب دہن بھی لگا تھا، اسے کاٹ کے تبرک کے لیے اپنے پاس رکھا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے بھی پانی پی سکتے ہو اور بیٹھ کے بھی پانی پی سکتے ہو. لیکن نبی کی بڑی سنت جو ہے اور جو حکم ہے اور جو زیادہ آپ کو روایتیں ملتی ہیں وہ بیٹھ کے پینے کی ملتی ہیں. اسی لیے یہ جو الٹی سیدھی باتیں ہیں کہ سیدھا میدے پہ جاتا ہے اور ایسا ہے جیسے نالے میں ڈال دیا پانی کھڑے ہو کے پینا، سب بیکار کی باتیں. نبی کو کہیں نہیں فرمائی. کھڑے ہو کے صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا. حضرت علی جب کوفے میں گیا دین سکھاتے تھے لوگوں کو، وہاں یہ بات کہی لوگوں کو. میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے دیکھا، اسی لیے پی کے دکھایا کھڑے ہو کے. یہ کہا کہ تم ایسا نہ ہو مجھے ٹوکو. میں نے مدینے والے کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے. پوری یہ صحیح روایت ہے، بالکل حدیث ہے. بندے ماترم کا نہ کہنا کیا ملک سے نفرت ہونا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بندے ماترم کا نہ کہنا کیا مجھ سے نفرت کی بات؟ نہیں بھائی، نفرت کی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں بندے ماترم میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جیسے شرکیہ پہلو ہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، نمن کر رہے ہیں اور کسی مطلب ان کی دیوی کا بھی ذکر ہے اس میں، تو اس وجہ سے منع ہے. بالکل یہ تھوڑی ہے کہ اگر ہم بندے ماترم نہیں کہہ رہے تو ہمیں اپنے ملک سے نفرت ہے. ہمارے ماں باپ جو ہے اگر کسی شرعی چیز کا ہمیں منع کرتے ہیں، مان لو
किसी बात को वो ये कहें कि भाई तुम ये फला नमाज ना पढ़ो, हम उन्हें मना कर दें, तो ऐसा थोड़ी है हमें उनसे नफरत है, हमें अपनी शरीयत से मोहब्बत है। इस तरह थोड़ी बात है कि हम उनसे नफरत कर रहे हैं, उनका कोई कहना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया कि भाई जो दीन का मामला हो उसमें सिर्फ अल्लाह की सुननी है, आपने किसी मखलूक की नहीं सुननी। तो अगर आपके माँ बाप ऐसा कोई हुक्म दे रहे हैं जो शरीयत के खिलाफ होगा तो आप उनसे मना कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे नफरत कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत ही करनी है। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी बेटी थी हज़रत अस्मा। अभी तक उनकी माँ जो है वो ईमान में नहीं आई थी। एक दिन मदीना आई तो ये भागी में आई हुजूर के पास कि हुजूर मेरी माँ जो है वो काफिरा है, क्या मैं उसके साथ उससे सलूक करूँ? ना, बिल्कुल उसके साथ उससे सलूक कर, उनसे तो नफरत उस हालत में भी नहीं करनी। इसलिए ये बात नहीं है, बात ये है कि हम अपने दीन को जिस तरह से हमारे रसूल दे गए उसी तरह फॉलो करेंगे। इसलिए वंदे मातरम कहने में हमें हिचकिचाहट है उसे गाने में। तो काबे के सामने नमाज अदा करते हुए अपनी निगाह सजदे की जगह रखो, ये काबे के ऊपर। बहुत अहम सवाल है। इनका सवाल ये है कि जो लोग हज उम्र पे जाते हैं काबे के सामने जब नफले अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो नज़र सजदे की जगह पे रखें या काबे पे रखें। भाई काबे जैसी चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगी? मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ आप जब नियत कर में ये लाते हो बात, तो आपकी तो नज़र काबे पे ही रहनी चाहिए। वैसे आम हुक्म आपकी अपनी यहाँ नमाजों में है सजदे की तरफ देखना है, लेकिन जहाँ आपको अल्लाह का घर मिल रहा है वहाँ तो आप टकटकी लगा के, क्योंकि देखो एक रिवायत ये भी मिलती है कि काबे को देखना भी बहुत सवाब की बात है। 3 चीज़ें जो है ना उन्हें जब नबी ने फरमाया, उसमें एक तो कलाम पाक, एक माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना, एक काबे को मोहब्बत की नज़र से देखना। तो आपको तो चांस मिल रहा है, आपकी 4-5 मिनट की नमाज है, आप अपने अल्लाह के घर को निहारते रहो। अरे इसमें आगे जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, क्या ये बात ठीक है? इनका सवाल ये है कि हदीस में है कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसमें मेरी शफाअत वाजिब हो गई। नहीं भाई ये तो सही हदीस नहीं है। तो इस तरह तो बहुत मामला हो जाएगा कि अगर कोई जानी और शराबी और जुआरी और सूद के काम करने वाले जाके हुजूर की कब्र की ज़ियारत करिए तो हुजूर की शफाअत में तो फिर उन्हें सज़ा ही नहीं मिलने की। ये सब घड़ी हुई रिवायतें हैं इस तरह की। मैंने तो कोई सही हदीस इस तरह की पढ़ी नहीं भाई। एक भाई का सवाल है, अपने बेटे को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, मगर उनके आलिम दोस्त कहते हैं कि हिफ्ज़ करना नफिल है और समझना फ़र्ज़ है। इनका सवाल ये है कि बेटे को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, लेकिन उनके कोई साथी आलिम ये कहते हैं कि बच्चे को हिफ्ज़ कराने से बेहतर ये है कि कुरान की उसे सही तालीम दिलवाओ जिससे वो कुरान को समझे। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। कुरान जो है वो हिफ्ज़ करने के लिए नहीं आया, जो ज़रूरत थी हिफ्ज़ करने की वो टाइम अब निकल चुका। पहले जब तक ये नेट का ज़माना नहीं था या जब तक ये छपाई वाली मशीनें नहीं लगी थी, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, तब तक बहुत ज़रूरत थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई सारे कुरान फूक दे या समंदर में फेंक दे तो हाफिज़ हजरात जो थे चलते फिरते कुरान थे कि फिर लिखवा देंगे। लेकिन अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब तो कुरान समझने की ज़रूरत है कि आप इस टाइम जो है लोगों तक कुरान की तालीम पहुँचाओ। जिस तरह से लोगों में तब्दीली आए, कुरान को अल्लाह ने हुदल लिन्नास कहा, हुदल लिलमुत्तकीन कहा। हम तकवा या हिदायत हासिल कर ही नहीं सकते जब तक हम उसे समझ के ना पढ़ें। हमें अपनी ज़बान में कुरान आना चाहिए, उर्दू ज़बान में, अरबी ज़बान में। आप यकीन करें, आप उस हदीस पे जाएं कि हुजूर ने फरमाया एक आयत समझना जो है वो 100 नफलों से बेहतर है। और 100 नफलों की मिसाल मैंने आपको एक बार दी थी कि 7 आयतें तो सूरह फातिहा और 3 आयतें किसी छोटी से छोटी सूरत उसकी होती हैं। तो अगर इन्हें सब दोनों को मिलाया जाए तो 10 आयतें बनती हैं और 100 नफलों में 1000 आयतें हैं। इसका मफहूम ये निकलता है इस हदीस का कि एक आयत समझ के पढ़ने का मतलब, उसे अमल में लाने का मतलब 1000 आयतों की तिलावत से बेहतर है। तो इसलिए अगर आप एक रुकू की तिलावत कर रहे हैं तो एक पारा समझ के पढ़ें पूरा, कम से कम, जब हक अदा होगा कुरान का। अच्छा, मैयत पे या फिर दुकान पर मकान के ओपनिंग पे खाना नहीं कराते हैं? इनका सवाल यह है मैयत पे या दुकान मकान की ओपनिंग पे कुरान खानी कराते हैं, क्या ये ठीक है? ना ये सुन्नत है, ना हुजूर की, ना सहाबा की, ना तबईन, ना तब तबाई। कुरान को मुर्दे बख्शवाने के लिए थोड़ी आया, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हिदायत के लिए आया। ये सब हमारे मौलवियों ने अपनी पौबारा करने के लिए कि माल मिलेगा, जाके इकट्ठे हो गए कुरान खानी करेंगे। और फीसें तय हुई हुई हैं, अब तो नेट पे पड़ी हुई है। यहाँ का तो मुझे इतना पता नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत है रिवाज। तो ये तो सब अपनी तरफ से ये बिजनेस बना लिया गया। बिल्कुल, अगर आपको कुछ पढ़ के बख्शना भी है तो आप 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ो। हुजूर ने फरमाया 1/3
कुरान के बराबर जो है सूरह इखलास जो है फजीलत रखती है। तो आप 3 दफ़ा पढ़ लो, ये कुरान का सवाब जो है अपने लिए अल्लाह के यहाँ भेजो और उसमें दुआ करो कि मेरे मुर्दे की भी अल्लाह पाक बख्शिश कर दी उन्हें दर्जे बुलंद कर। लेकिन ये कि आप मौलवियों को पैसे दे के या खाने खिलवा के आप जो है वो कुरान खानी करा रहे हैं, उनके क्या जज्बात आपके मुर्दे के साथ या आपके कारोबार के या आपकी दुकान के या आपके मकान के साथ। ये चलता है, हमारे अपने रिश्तेदारों में चले, लेकिन क्या करें, कब तक तो क्या समझ में तो आती नहीं औरतों की कोई बात, बदुआ ही कर सकें। जैसे मैं सूर्य मायका पढ़ रहा था, उसमें 2 भाइयों का जिक्र आया था मेरे सामने बच्चों का। तो एक भाई ने जब कत्ल कर दिया था, उसके बाद उसको इस बात की अफसोस हुआ कि यार अब क्या हो इसका। उसने कब्र को देखा, कब्र ने आके देखा, उसने उसके बाद अल्फाज आए थे कि फिर उसके बाद उसको नदामत हुई इस बात की कि यार मैंने कर क्या दिया। जब उसको नदामत हुई तो मैंने उसको माफ़ क्यों नहीं किया। इनका सवाल ये है कि जब उसे नदामत हुई कत्ल करके अपने भाई का, तो अल्लाह ने उसे माफ़ क्यों नहीं किया? उसने माफ़ी मांगी ही नहीं, अल्लाह ने माफ़ करना चाहा ही नहीं। अगर उसके दिल में ऐसी नदामत होती कि मैं आगे ये नहीं काम करूँगा, आदम अलैहिस्सलाम तो गलती हुई थी, तड़पते फिर रहे थे कि मैंने क्या कर दिया, ये अल्लाह के हुक्म की जो है वो तौहीन कर दी, पामाल कर दी अल्लाह के हुक्म। अल्लाह ने उनके दिल में ऐसे कलमे डाले कि उनकी मुँह से तौबा निकली। कुरान में जिक्र है उस तौबा का, तो उनके अल्फाज भी हैं कुरान ने हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए वो अल्फाज जो है वो लोगों के तिलावत में कर दिए। तो अगर वो ऐसी ही तौबा वो करता और उससे ऐसी नदामत होती, एक तो नदामत ये है कि मैंने क्या कर दिया है और मैं इसकी लाश का क्या करूँ, तो अल्लाह ने कहा भेज दिया कर ले। अब वो ये करता, अल्लाह आगे ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं करना है, वो है नदामत, तो अल्लाह उसे भी कलमा सिखा देता और फिर उसे तौबा करके उसे माफ़ कर देता। आदम अलैहिस्सलाम ने कम बड़ी खता करी थी, माँ हुआ ने आदम अलैहिस्सलाम ने, जब अल्लाह ने मना कर दिया कि इस पेड़ के पास नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना, आप फिर खा रहे। लेकिन जब वो नदामत उन्होंने करी तो अल्लाह ने नबी बना दिया। ये करता उस तरह की नदामत और उस तरह की तौबा जैसी आदम अलैहिस्सलाम ने करी थी, माफ़ कर देते अल्लाह पाक। तो बहाने ढूंढे गुनाह बस, करने से अफसोस करने पे खाली अफसोस से कुछ नहीं होता। तौबा और अमल से उस तौबा को दिखाना भी है ज़िंदगी भर। वो देखो क्या होती है तौबा, क्या है तौबा जो है वो ये है कि मैं आगे इस काम को ना करने का अज़्म करता हूँ। माफ़ी है कि अल्लाह तू मेरा पिछला सब माफ़ कर दे। तौबा यह है कि आगे मैं ज़िंदगी भर ये काम नहीं करूँगा जिससे तेरी शरीयत की जो है वो हुक्म दूली हो। तो ये है तौबा। तो अब ये थोड़ी कि आपने तौबा इस्तग़फ़ार करा अब फिर वही काम करने बैठ गए, ये तो ड्रामेबाजी है, इसमें तो और दुगनी पकड़ होनी अल्लाह के यहाँ। यहूद के बारे में कुरान जिल्लत की बात करता है, जबकि वो तो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है इनका। सवाल ये है यहूद के बारे में कुरान जिल्लत और मुश्किलत की बात करता है और जबकि वो आज राज कर रहे हैं दुनिया पर। बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये देखो ना कि उन्होंने किस तरह से आपको पूरे चुंगल में फंसाया हुआ है। ये जवाब जाकिर नाइक ने दिया था, पाकिस्तान में एक बच्ची ने किया था उनसे सवाल, ठीक, और बड़ा ज़बरदस्त जवाब था ये। तो उन्होंने ये समझाया था कि किस तरह से इन्होंने पूरा बैंकिंग सिस्टम और पूरा ये जो आपका मीडिया है इसे कैप्चर कर लिया यहूद ने। हालांकि कितने से हैं, मेरे ख्याल में 15-16 मिलियन होंगे कितने हैं, और पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं क्योंकि सारे बैंकिंग के हैं और सारा जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है सब इनके हाथ में। तो इन्होंने ब्याज में इस तरह से उलझा दिया आपको कि आप अल्लाह और रसूल के दुश्मन। कुरान की आयत है कि जो सूद का काम न छोड़ो अल्लाह रसूल की दुश्मनी के लिए तैयार हो जाए। तो उनसे पहले तो आप अल्लाह से लड़ रहे, वो तो इतना लड़ भी नहीं रहे अल्लाह से। तो उनके ऊपर तो जो है वो जिल्लत और मुसीबत जब आएगी, जब आप ईमान वाले हो जाओगे। आप क्यों उनकी चुंगल में फंस रहे? आप ये देखो, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल में 80% का वो जो है वो क्रेडिट कार्ड बना हुआ होगा। क्रेडिट कार्ड क्या है? वो ये आपको लाराई तो देते हैं कि भाई 30 दिन तक आप पैसा इस्तेमाल करो, 29वें दिन जमा कर दो, हम कोई भी आपसे फिर कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने 31वां दिन कर दिया तो आपसे इंटरेस्ट लेंगे, तो आप इंटरेस्ट में वहाँ फंस गए। भाई कोई मजबूर है, आप अस्पताल में पहुँच गया, एक्सीडेंट हो गया, आपके तो पैसे चढ़ने शुरू हो गए। उन्हें थोड़ी मतलब है इस बात से कि आप एक्सीडेंट वेंटिलेटर पर हो। तो इसलिए तरीके से फंसा रखा लोगों को। लोन की ऐसी चीज़ें सामने पेश करेंगे कि आदमी फंस जाए। अब कृषि कार्ड चढ़ा दिया, अब कृषि कार्ड में अच्छी खासी ज़मीनें लोगों ने जो है बैंक में रख दी कम ब्याज के चक्कर में कि हमें बहुत थोड़े से ब्याज में पैसा मिल जाए। ये पता नहीं पेशाब की एक बूंद पूरे ड्रम को नापाक कर दी। मेरे पास रोज़ केस आते हैं, एक दिन नहीं होता। ये लंबी लंबी दाढ़ी है और ऐसी सफ़ेद टोपी है और बड़े अल्लाह वाले बने। और जब मैं पूछूँगा कहेंगे कि हम परेशान। मैंने क्यों परेशान है भाई तू? ये तो नमाज नहीं पढ़ता और या फिर सूद पे पैसे, दो में से एक काम निकलता है दोनों का।
तीसरा काम अपनी बीवियों पे जुल्म। अभी जिस नबी की तुमने दाढ़ी रखी उस नबी का रवैया तुम्हारे अंदर नहीं आने का तो फिर अल्लाह तुमसे बदले नहीं लेने का। वही तो जो आज आयत अभी पोस्टर में दिखा रहे थे, जो मैं कह रहा था, जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। भाई नबी जो आपको रवैया देगा वो आपके अंदर है ही नहीं। नबी मरते मरते कहेगा कि औरतों का ख्याल रखना है, कमज़ोर है। आखिरी लफ्ज़ है हुजूर के, इनका ख्याल रखना है, कमज़ोर है, इन तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जुल्म औरतों पर हो रहा है। रोज़ मेरे पास केस हमें खाल उतार रखी है, ऐसी ऐसी मासूम औरतें जन्नती शक्ल से लगे, नाम से भी ऐसे ऐसे अच्छे अमाल की, और आते गाली बकेगा, मारेगा, नशे में या वैसे गुस्से में बाहर की सारी उस पर उतारेगा। मतलब मछली की तरह तड़पती हैं औरतें, ईमानदारी बात। शायद कुछ दिन ऐसा गुजरता हो कि मैं रोके नाता हूँ इनके साथ। इतने बुरे हाल कर रखे, और ये सब मुसलमान हैं। तो इसलिए जब तक हम अल्लाह रसूल के ताबेदार नहीं होंगे, इन पे जिल्लत और मुश्किलात आने की नहीं। यही जवाब था उसका लब्बुल वाब, मैंने आपको बता दिया। उन्होंने तो 20-25 मिनट में जवाब दिया था, और बहुत अच्छा जवाब है। अगर आपको नेट पे मिल जाए कहीं तो, या मुझे मिल गया तो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में डाल दूँगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मैंने हदीस पढ़ी थी मैंने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग महशर के दिन ऐसे लाए जाएंगे कि उनके नेक अमाल नाम एक भी नेकी नहीं होगी, बस एक चीज़ पर बख्शे जाएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ की होगी। तो हुकूकुल्लाह के ऊपर गाली रहे चीज़ खिदमत खल्क़। इनका सवाल यह है कि हुकूकुल्लाह पे खिदमत खल्क़ हावी है? नहीं भाई, असल में नेकी किसे, आप जो फ़राइज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए तय कर दिए, जो 5 सुकून हैं, कलमे के बाद 4, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर आपके वो पूरे हैं और आपके नफली कोई इबादत उसमें नहीं जुड़ी, तो उसके बाद फिर हुकूक की बात शुरू हो जाता है। वही बिल्ली का किस्सा याद करो आप, बुढ़िया का, तो उसने एक बिल्ली को बांधे रखा, उसे खाने को नहीं दिया, बहुत नमाजी परहेजगार, लेकिन अल्लाह ने उसे दोज़ख रसीद करा दिया। उस फ़ाहिशा का किस्सा याद करो जिसकी कोई नेकी नहीं थी, उन्होंने एक कुत्ते को जुराब में ले लेके पानी पिलाया, उसे अल्लाह ने बख्श दिया। तो दिल की नरमी के ऊपर बख्शिश है, समझो आप कितनी नमाज़ें पढ़ते रहो, अगर आपका दिल नरम नहीं है, अगर किसी गरीब को, किसी कमज़ोर को, किसी परेशान हाल को देख के आपका दिल पसीजता नहीं है, अगर आपको तरस नहीं आता, रहम नहीं आता, तो आप जो है वो मोमिन नहीं हो। मुसलमान तो हो सको लेकिन मोमिन नहीं हो। डॉक्टर इसरार अहमद तो इसमें बड़ा सख्त लफ्ज़ कहा करें कुछ कि तुम जो है मुसलमान तो हो सको लेकिन नेक नहीं हो सकते। नेकी ये है कि आपका दिल पसीजना चाहिए किसी परेशानी को देख। क्या कुरान के आयत डीपी पर लगाना ठीक है? ठीक है, सवाल यह क्या कुरान की आयत डीपी पे लगाना ठीक है? नहीं भाई, अगर इस नीयत से आप लगा रहे, आप दाई हो, दीन की तबलीग करते हो, लोग पढ़ेंगे, उन्हें सवाब हासिल होगा, बिल्कुल जाइए। लेकिन अपने आप अपनी पौं बारा करना, अपने आप को आलिम साबित करना और लोगों में अपनी जो है वो शोबाजी जो है खुदनुमाई, उससे जो अगर आपका मकसद होगा तो आपकी पकड़ हो जाएगी कुरान की बेहुरमती। अच्छा, इस तरह कब्रों पर करने वाली चादर या कुरान की जो चादर लाना नहीं है। ठीक है, सवाल ये कब्र पे करने कलमे वाली है कुरान की आयत लिखी हुई, चादर डालना ठीक है? आप कर क्लियर जा रहे हैं? नहीं भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जानवरों का गुजर होता है, बकरिए, कुत्ते पेशाब भी करते हैं, कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हैं, मैंने खुद देखे। और कबूतर, चिड़िए, चुईए, छिपकलिए, जो जानवर हैं उनका वहाँ गुजर होता है, तो वहाँ आप बेहुरमती कर रहे हैं अल्लाह के कलमे की भी और अल्लाह की कुरान की आयत की भी। इसलिए बिल्कुल कभी ये काम ना करें। क्या बीवी को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? ठीक है, सवाल यह है क्या बीवी को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? नहीं भाई, ये कुरान की एक आयत से लोगों ने निकाला है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात आई ना सामने, असल में इसका मफहूम यही है कि अगर आप शहवत से हाथ लगाओगे ना अपनी बीवी को, फिर तो वजू टूट जाएगा। जिस तरह से शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू टूटने की एक बार मैंने आपको बताई थी, तो वो तो एक आज़ा है जिस्म का, जैसे और आज़ा है आँख, नाक, कान आपके, इसी तरह से आपकी पेशाब का भी आज़ा है। अगर आपने शर्मगाह पे हाथ लगा लिया इस नीयत से क्या खारिज हो रही थी, तो आपका कोई वजू नहीं टूटता। लेकिन अगर शहवत से आपने हाथ लगाया शर्मगाह को, फिर आपका वजू टूट जाए। यही हाल आपकी बीवी के बारे में भी है। अगर चलते फिरते ऐसे ही हाथ लग गया आपका, तो इंटेंशनली आपका मतलब शहवत नहीं थी तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर शहवत आपके दिल में थी तो फिर आपको दोबारा वजू करना चाहिए। कुरान पढ़ने का तरीका क्या रखें? इनका सवाल ये है कुरान पढ़ने का तरीका क्या रखें? भाई पढ़ने ज़्यादा सुना करो कुरान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है। मैंने हज़रत
हज़रत ही कहा जाएगा उन्हें, गामडी साहब, उनकी सुनी लीजिए बात एक बात। तो कुरान जो है पढ़ने ज़्यादा सुनने की चीज़ है। और आप देख लो, मैंने भी कुरान सुन के ही सीखा, सच्ची बात है, इतना पढ़ा नहीं जितना सुना। अब तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैंने सीखा ना कुरान, सारा सुना ही है। डॉक्टर इसरार अहमद, तारिक अब्दुल्ला और नौमान अली खां हैं, और एक और डॉक्टर इसरार अहमद के शागिर्द थे, उनका नाम मैं भूल गया। इन सब का सुन के मैंने, करीम पारे साहब, इस तरह से कुरान सीखा। तो सुनने से आपकी ज़्यादा असर होता है, आपके दिल में भी, दिमाग में भी। पढ़ना भी चाहिए, पढ़ने का हक अदा जब भी होगा जब आप तिलावत भी करेंगे, उसे समझेंगे भी अपनी ज़ुबान में। बेहतरीन तरीका वही है कि आप कुरान लेके बैठ जाओ और किसी स्कॉलर का तर्जुमा सुनना शुरू कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हुजूर सुनते थे कुरान को, सहाबा किराम को कहते थे कि मुझे सुनाओ, तो वो बल्कि इस बात पे थोड़ा हिचकिचाते थे कि हुजूर आप पे तो कुरान उतरा और हम आपको सुना है कि हाँ, जब मैं हुक्म दे रहा सुनाओ। तो सुनना ज़्यादा बेहतर है। वैसे पढ़ने का तरीका यही है कि आप रोज़ एक रुकू की तिलावत करो और एक पारा तर्जुमे का पूरा तर्जुमा पढ़ो, और उसमें जो चीज़ समझ में आए निशान लगाओ, और फिर किसी स्कॉलर का तर्जुमा देखो और उसे क्लियर करो। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है 1 साल मिल जाएगा, आप कुरान के अच्छे खासे दाई बन जाओगे। और हदीस याद रखना, तुम में बेहतरीन है उन्होंने जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या बीवी शौहर की कमाई से माँ बाप को ज़कात दे सकती है? उनका सवाल यह है कि शौहर की कमाई से बीवी अपने माँ बाप को ज़कात दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है भाई, अगर शौहर की उसकी इजाज़त है। क्योंकि शौहर देखेगा ना कि मुस्तहिक़ है नहीं है। ज़कात का जो मामला यह है, अगर मुस्तहिक़ तक नहीं पहुँची, ना अदा होगी ना उसे लगेगी। तो अगर उसके माँ बाप बीवी के गरीब हैं और मुस्तहिक़ हैं, तो बिल्कुल उसे देनी चाहिए, अपने शौहर से इजाज़त लेनी। या कुछ शौहर ऐसे होते हैं भाई जो अपनी बीवी को देते हैं, भाई 10,000 के ज़कात के हैं, बांट देना, तो वो मालिक हो गई, फिर उसकी मतलब जहाँ मुनाई समझे वहाँ दे, लेकिन वो भी मुस्तहिक़ ही जिन्हें वो दे, क्योंकि वरना फिर इसकी पकड़ होगी। इसके शौहर ने तो इस पर यकीन कर लिया और इसने अगर सही तरह जगह नहीं दी तो फिर इसकी पकड़ होगी। इसी तरह सफ़ी लोग होते हैं जो ज़कात बांटने वाले लोग हों, उन्हें हम खोल के बता देते हैं अपने साथियों में भी कि भाई ज़कात के पैसे हैं, सही जगह पहुँचनी चाहिए, जिससे कि हम तो मुबर्रा हो जाए, वो फंसेंगे अगर वो गलत करें। अच्छा, यूट्यूब पे आगे नहीं कंट्रोवर्सी चल रही है आप इससे तलाक के ऊपर, वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, किसी लोग और हनफी लोग अपने दलाइल पेश कर रहे हैं, और दोनों के पास दलाइल हैं, दोनों के पास हदीस हैं। एक वक्त में दी गई तलाक की तीन होती हैं, और उनके पास भी दलील है कि अल्लाह के रसूल के वक्त में एक वक्त में दी गई 10 तलाक के लिए मानी है। हाँ, तो इसमें आम मुसलमान या वो बदजन हो जाता है कि आप दोनों तरह के हदीस हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। इनका सवाल ये है कि तारिक मसूद साहब कहते हैं कि एक वक्त में 3 तलाक़ें 3 गिनी जाएंगी। अहले हदीस कहते हैं एक वक्त में 1 तलाक, 100 तलाक, 1000 तलाक एक गिनी जाएगी। देखो, माई आयशा ये फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कोई मुश्किल और आसानी का मामला आता था तो हुजूर आसानी को चुन लेते। आसानी इनमें दोनों में किसके साथ है? अहले हदीस के साथ। तो आप आसान मामला चुन लो कि जिससे घर बचे, घर टूटे ना। तारिक मसूद साहब तोड़ने की बात कर रहे हैं, अहले हदीस जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तलाक किसी ने दे दी, उसका घर न टूटे, बच्चे जो हैं मारे ना फिर माँ बाप के बिना न पलें, बाप अलग और माँ अलग, ज़िंदगी बर्बाद हो, हरामकारियों में पड़े लोग। इसलिए उसे चांस दें, वो रुजू कर ले या फिर दूसरा दोबारा निकाह कर ले, इद्दत अगर पूरी हो गई हो। लेकिन उसके बाद 2 तलाक़ों का चांस बाकी रहना चाहिए, आगे ज़िंदगी भर वो तलाक ही ना दे। तलाक को अल्लाह ने नापसंदीदा करार दिया, लेकिन जायज़ रखा इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई जोड़ा ऐसा फंस जाए उनमें आपस में नहीं बनती, तो वो एक दूसरे से सेपरेशन इख्तियार करें, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह कहता है कि बस निकाल दूंगा तुम्हारे लिए साहब। लेकिन इसे मुश्किल मतलब इसे देना भी इतना मुश्किल रखा अल्लाह ने। ये ऐसा थोड़ी है कि कोई नशे में कह दे, कोई गुस्से में कह दे, चलता फिरता कह दे तलाक, और हो गई तलाक 3 दफ़ा कह दी ने तलाक चल भाई तैर फैड़ हो गया। इतना आसान थोड़ी है मामला। तलाक दी, और हुजूर की हदीसें हैं कि आप हैज के टाइम में तलाक नहीं दे सकते, बल्कि जब वो तहारत हासिल कर ले और हम बिस्तरी करे भी ना आप तलाक दो। अगर आपने हम बिस्तरी कर ली तो 1 महीना और इंतजार करो अगले हैज तक, ठीक। अगर आपने तलाक दे दी ऐसे टाइम पे कि वो उसने तहारत हासिल करी, आपने तलाक दे दी, आपने पहले प्लान कर रखा था, मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया अपना इद्दत, इस बीच में आपका ये हुआ कि भाई मैंने गलत करा, आप उससे 3 हैज से पहले रुजू कर लो, 2 गवाहों के साथ जाके अपना उससे कह दो मैं रुजू कर रहा, रात में हम बिस्तरी कर लो, उसका मामला वो निमट गया, रुजू हो गया, 2 तलाक का हक बाकी। उसके बाद फिर कभी ऐसा हो दोबारा इसी तरह से, उसके बाद तीसरी बार अगर तलाक दे दी,
پھر وہ جو ہے آپ کے لیے نہ رجوع کر سکتے اس سے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے تب تک جب تک کہ وہ پہلے کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے، اس کی بھی ڈیتھ ہو جائے یا وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے، اس کی بھی عدت پوری کرے گی 3 حیض کی یا 4 مہینے 10 دن کی اگر انہیں ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد پھر اس پہلے والے شوہر کے لیے حلال، یہ قرآن ہے، یہ حلال حلالہ ہے، یہ جو حرام حلال کرا رہے ہیں یہ حرام کاری ہیں، ان کے بارے میں حدیث ہے کہ حلالہ کرنے کرانے والے دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق۔ تو اس لیے اگر صحیح طریقے سے طلاق حسنہ جو کہلاتی ہے وہ ہو تو ایک بھی طلاق نہ ہو معاشرے میں، اگر ہوگی بھی نا تو لاکھوں میں ایک آدھی ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں چپے چپے پہ طلاقیں ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ اسے ریوڑی بنا دیا طلاق کو، جو مرضی اٹھاوے دے دے طلاق۔ اچھا، اسی طریقے سے مفتی شہزاد کامران ہیں، انہوں نے یہی جواب دیا بالکل جس طرح آپ نے دیا، ان دونوں کی صلح ہو سکتی ہے مفتی کی اور یہ کنٹروورسی ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر مفتی راج مسعود صاحب کا جواب یہ ہے کہ چاروں امام اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ پانچوں کے پانچوں بیوقوف تھے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں اللہ آئی۔ اسے تو یہ الفاظ ہی نہیں کہنے چاہیے صحابہ اکرام کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، اس کی اوقات ہی کیا بیچارے گی حضرت مسعود کی، نہیں سخت الفاظ ہیں، بالکل نہیں یہ بات کہنی چاہیے۔ اور انہوں نے بھی تحقیق کے ساتھ اہل حدیث نے بات رکھی، میں تو اہل حدیث کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، کیونکہ قرآن اس طرف اشارہ دیتا ہے جو اہل حدیث کہتے ہیں، بالکل آپ جا کے آج پڑھو سارے لوگ 228 سے 232 تک، اور ساتھ میں رکھنا جو میری کتاب ہے اس کا نام ہی بھول گیا میں، اللہ کی باتیں، ہاں اس میں نے وضاحت سے پوری تفصیل بیان کر دی سن 2004 میں، اب سے 20 سال پہلے پوری کتاب ہے، سورہ بقرہ آیت 228 سے 232۔ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے جو سیدنا عمر کو اتنا سخت فیصلہ لینا پڑ گیا کیا کہ 3 طلاق 3 میں ہوتی ہے؟ اصل میں لوگوں نے مذاق بنا لیا تھا نا، یہی جو آج مذاق بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا تو میں اسے جاری کر دوں گا، لیکن وہ وقتی تھی۔ اب حضرت عمر نے تو یہ بھی کہا تھا جب ایک بار قحط پڑا کہ بھائی جو بھی اناج چرا گا اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اب تم اب تک چوری کرتے رہو، پھر تو یاد ہے یہ بات، تو وہ بات تو بھول گئے اور اسے یاد رکھا ساری عمر کو۔ ارے بھائی انہوں نے رجوع کر لیا آخر میں اپنے فتوے سے، جو 3 طلاقیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت میں کرا دوں، کرا دی تھی انہوں نے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، کوئی کوڑا برسانے کے لیے تھوڑی طلاق کا کوڑا آ گیا مردوں کے ہاتھ میں، تو زندگی برباد کر رکھی ہے عورتوں کی۔ ہیں؟ ہاں انہوں نے رجوع کیا۔ اور بھی ایک معاملہ ایسا ہوا، انہوں نے حضرت عمر نے ایک بار یہ بات کہہ دی کہ کوئی بھی جو ہے اتنی مقدار میں نے طے کر دی مہر کی، تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، عمر تو ہوتا کون ہے، خلیفہ تھے اور ممبر پہ بیٹھے تھے، تو کیسے کہہ دے گا یہ بات کہ اتنی مقدار میں مہر دینا، جبکہ اللہ تو یہ کہتا ہے اگر خزانے بھی دو تو تم واپس نہیں لے سکتے اپنی عورت سے، تو اللہ تو خزانوں کی بات کر رہا، تو طے کر رہا کہ اتنی مقدار ہوگی۔ کھڑے ہو کے بھاری آدمی سے دھم سے گرے گھٹنوں کے بل کہ آج ایک بڑھیا نے اللہ کے دین کی حفاظت کری عمر سے۔ یہ الفاظ ہیں روایتوں میں، کمال کی بات یہ ہے، ہم تو ذرا سا کسی منسٹر کے سامنے، ایم ایل اے کے سامنے کھڑے ہوئے کوئی بات کر دو تو مجھے تھوک نکلنے لگے۔ وہ اس ٹائم یہ سمجھو اس ٹائم اس وقت کے حکمراں تھے، ہیڈ مودی سمجھو اس وقت کے، یا وہ جو کیا ہے ٹرمپ اس وقت کے۔ کیا تحفہ لینے سے پہلے منع کرنا چاہیے؟ ہاں پوچھ مل رہا کیا مال، ان کا سوال یہ ہے کہ تحفہ لینے سے پہلے منع کرنا چاہیے۔ بھئی اخلاقاً کوئی منع کرے تو ٹھیک، لیکن نبی نے فرمایا خوشبو کے معاملے میں کہ اگر کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اسے منع نہ کرنا، تو اس لیے خوشبو کوئی دے، کیونکہ خوشبو ایسی کوئی ویسی چیز بھی نہیں ہوتی کہ کوئی بہت مہنگی چیز ہو۔ ہاں مہنگے تحفے جو ہیں نا اس میں پھر اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے وہ واپس کرنا آپ کے لیے بہت مشکل، لیکن حضور نے تحفوں کے لینے دینے کو یہ کہا کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو اس کا بدلہ ضرور دو۔ اگر آپ کی حیثیت مان لو 1000 کا تحفہ کسی نے آپ کو دیا تو آپ کی حیثیت 1000 کی ہے تو آپ 500 کا دو، لیکن یہ نہ ہو کہ پی کے بیٹھ جاؤ جس مقصد سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا، عدت میں عورت یوٹیوب چلائے یا فون کا استعمال کرے تو کیا جائے گا؟ عدت میں کیا چلا ہے؟ یوٹیوب۔ یوٹیوب ان کا سوال یہ ہے موبائل کا یوز کرنا عدت میں، یوٹیوب وغیرہ دیکھنا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر جائز چیزیں دیکھ رہی تو بالکل ٹھیک ہے، اس کا ٹائم کٹے گا۔ اچھا دین کی چیزیں دیکھے، قرآن کا درس سنیں، پورا قرآن سن لے، جس طرح سے میں بتا رہا، قرآن ہاتھ میں لے کے ترجمہ والا اور اس میں لگا لے یوٹیوب پہ۔ یہ تو میڈیا کا جو ہے پازیٹیو استعمال ہے، لیکن اگر وہ فلمی گانے گندی فلمیں دیکھے گی تو اس کی عدت ہی کیا، پھر تو عدت ہی نہ کرے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، ان کی فلائٹ 18 گھنٹے کی تھی، اثر مغرب عشاء نہیں پڑھ پایا، کیا اب پڑھ لوں؟
ان کا سوال یہ ہے 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی, جگہ پہ جب پہنچے تو ان کی 3 نمازیں نکل گئی تھی, عصر مغرب کی شام. مغرب اور عشاء نکل گئی تھی. اچھا تو اب کیا پڑھ لوں؟ بالکل آپ کو فوراً پہلے اترتے ہی پڑھنی چاہیے کہ اب کیا پڑھ لوں. آپ کو تو ایئرپورٹ پہ جگہ مل جائے, اپنے کمرے میں پہنچتے ہی آپ جہاں بھی پہنچے وہاں فوراً دیکھو. آج ایک نقطہ سمجھ لو, اگر کوئی ہنگامی حالات ہونا ہے ایسے تو آپ نے فوراً ان حالات سے نکل کے نماز پڑھنی ہے, تو وہ آپ کی قضا نہیں گنی جائے گی. میں نے آپ کو سنا چکا شاید وہ 2 واقعے نبی کے ساتھ ہوئے. ایک بار تو جنگ خیبر سے لوٹتے ہوئے جو ہے وہ فجر کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا, سارے کے سارے سو گئے. حضرت بلال کو ڈیوٹی پہ لگایا تھا, وہ بھی سو گئے. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت نکل چکا تھا. حضور نے پہلے تو یہ جگہ چھوڑو, یہاں شیطان نے جو ہے ہماری نماز قضا کرائی, اسے نکلو یہاں سے. اور آگے تھوڑا سا پڑھ کے فوراً نماز ادا کی حضور نے. ایک بار اسی طرح سے جنگ احزاب میں کافروں کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں اتنی آگے نکل گئے کہ اثر اور مغرب دونوں نکل گئے. تو حضور نے فوراً آتے سب سے پہلے اثر اور پھر مغرب پڑھی, حالانکہ ٹائم نہیں تھا. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب آپ کسی ہنگامی حالات میں پھنس جاؤ, کوئی ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے جیسے یہ حالات آپ بتا رہے ہیں, یا آپ کسی ایسی جگہ سفر میں ہو, ٹرین میں جہاں پڑھ نہیں سکتے, ملک کے حالات ایسے ہیں, تو آپ جب اس سچویشن سے نکلے, مان لو کسی جام میں پھنس گئے, تو آپ نکلتے سب سے پہلے وہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ ادا گنی جائے گی. حضور سے جب آگے ایک صحابی نے کہا نا کہ جی آج ہماری فجر کی نماز نکل گئی, خطا ہو گئی. حضور نے کوئی خطا نہیں, نیند میں کوئی خطا نہیں ہوتی, اور ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہو, ہماری ادا ہے. جب تم سو کے جا کے, اور جب تمہیں بھول گئے تھے اگر نماز پڑھنا یاد آ جائے تو وہ تمہارا وہی ٹائم نماز کا ہے, تمہاری ادا ہوگی اگر تم اس سچویشن سے نکلتے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نے 2 دن گزار دیے, 1 دن گزار دیا کہ پڑھ لوں, یہ لاپرواہی ہے, پھر آپ کی نماز جو ہے وہ پکڑ میں آئے گی, پھر قضا. کسی سے ایک سوال ملتا ہوا رہا ہے, بھیا جمعے کی ان کی ایک رکعت نکل گئی, وہ دوسری مسجد میں پڑھے اور سفر میں بھی ہیں. ان کا سوال یہ ہے سفر میں ہیں, جمعے کی نماز نکل گئی آج 1 رکعت, کیا اسے نماز کو پورا کریں دوسری مسجد میں جا کے, یا وہ ہو گئی؟ بھائی اگر تم نے دوسری رکعت اپنی پڑھ دی, ایک جب امام کے پیچھے پڑھ دی, بالکل آپ کی نماز ہو گئی. حضور نے تو فرمانا جسے رکعت مل گئی اسے جماعت مل گئی. آپ کو تو 1 رکعت ملی ہوئی ہے اور 1 رکعت آپ نے اپنی پڑھ دی, تو آپ کی وہ اول تو مسافروں پہ جمعہ ہے ہی نہیں, نبی یہ حدیث ہے, لیکن پھر بھی آپ نے پڑھا تو سعادت کی بات ہے. لیکن اب آپ جو ہے بالکل دوبارہ نہیں دہرانی, بھائی آپ کی نماز ہو گئی انشاءاللہ. کیا شادی میں کھڑے ہو کر کھانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کہ شادی میں کھڑے ہو کے کھانا کھانا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. آج جس طرح کی گیدرنگ ہو گئی, بھیڑ بھاڑ کی, اس میں بٹھانا تو ممکن ہی نہیں رہا. اگر کوئی 200-300 گیدرنگ کا معاملہ ہے پھر تو بٹھا کے, دیکھو سنت تو بیٹھ کے کھانا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے, کھڑے ہو کے کھاتے پیتے تھے. اتنی بڑی بات حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے. تو کبھی اگر ایسا موقع ہو, ہنگامی حالات ہوں, آپ, میں نے آج مثال دیا آپ کو, حضور کھڑے ہو کے پانی پی لیا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم کھا پی لیا کرتے تھے. تو پھر کھانے میں کوئی رنج نہیں ہے. دیکھو آپ نے مان لو سال میں 10 شادیاں اٹینڈ کرنی, آپ نے 365 دن میں 10 دن کھڑے ہو کے کھا پی لیا, کوئی فرق نہیں پڑتا. 355 دن تو آپ نے بیٹھ کے کھایا. تو سنت جو ہے وہ وہی ہے, حضور کا جو طریقہ ہے وہ بیٹھ کے کھانا ہے. لیکن کبھی اگر ایسے ہنگامہ تو نکو نہیں بننا. میں نے دیکھا پلوتھی مار کے کرسی پہ بیٹھ جائے گا, تو آیا کیوں, پہلے اپنے گھر کھا لیتا. وہاں نکو بننا, لوگوں میں دکھانا کہ میں بڑا پڑے گا, متقی پڑے گا, چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کی کرتا, اور جا کے بیٹھے گا اوپر, یوں دیکھے گا سب مجھے دیکھ رہے ہیں, پہلے تو پھنسے گا اللہ کے یہاں جا کے. اچھا کہ حرام کاموں کے لیے دعا کرنا اور اس دعا کو قبول ہو جانے پہ, کامیاب جانے پہ خوش ہونا, ہے کیا؟ ان کا سوال یہ ہے حرام کاموں کے لیے دعا کرنا اور کامیابی پہ خوش ہونا دونوں ہی حرام ہے. اللہ کی مذاق اڑانے والی بات ہے. معاذ اللہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا, آپ ان حرام کاموں کے لیے دعا کرا رہے ہیں. میرے پاس کیس آتے ہیں کہ یہ ہمارا لون نہیں کلیئر ہو رہا, میں تو دعا کروں گا آج کی طرح ہو ہی نہ اللہ کا. الٹا میں تو صاف بات کہہ دوں اس کے منہ سے گناہ زیادہ ہے. ہاں, اور بھائی جب آپ اللہ کی مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن میں تو اللہ کہہ رہا اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, تو لون لے رہا, ابھی میرے سے دعا کرا رہا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ پھنسا ہوگا اللہ کے یہاں, میں تو نہیں پھنسنے گا. تو یہ تو کوئی سا بھی کام ہو, اگر آپ حرام کام کی دعا کر رہے ہیں, مان لو کسی بچی پہ آپ کی نظر ہے اور آپ زنا کی دعا کرو کہ اللہ مجھے ملوا دے, تو اللہ تمہیں پکڑے گا, لازمی بات ہے اس کی تو حفاظت کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے, اس کو ڈاؤن کر دیں, مجھے اوپر کر دیں, یہ تو یہ حسد ہے, یہ تو اس سے ہی بڑا گناہ, اس سے ہی بڑا گناہ ہے. اچھا یہ میرا بھائی, مطلب بھائی دوست ہے میرا, اس نے کہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کام چیزوں کے بارے میں, تو اس وقت میں اس طرح کی دعا مانگتا ہوں,
क्या करता? कुछ भी होता हाँ जब को भूल जा रही थी, हाँ हाँ, तो बाद में मैंने फिर अल्लाह से तौबा कर ली। तो बस तौबा कर ली, ख़त्म, क्लियर हो गया। तौबा करने वाले के बारे में भी सूरह फुरकान बता चुकी है कि जो तौबा कर लेते हैं सच्चे दिल से, अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। सूरह फुरकान आयत 70। दुआ कुनूत याद ना हो तो क्या 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ लें? क्योंकि सवाल ये दुआ कुनूत याद ना हो तो 3 बार कुल अल्लाह पढ़ ले। नहीं भाई, कुल अल्लाह तो कुरान है भाई, कुरान थोड़ी पढ़नी, वहाँ तो दुआ करनी है, आप दुआ पढ़नी। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया, वो हालांकि कुरान है लेकिन वो दुआ की शक्ल में पढ़ी जाती है, आप वो पढ़ दिया करो। अव्वल तो दुआ कुनूत याद करो यार, जब आप उसका तर्जुमा पढ़ोगे तब आपको अंदाज़ा होगा दुआ कुनूत है क्या, तो आप उसके बदले में ये पढ़ दिया करो। या कोई और दुआ आपको याद हो, अल्लाह मग़फ़िर ली। मेरे तो याद है बचपन से ही होता। नहीं नहीं, सवाल ही तो मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें जवाब दे रहा, आपको नहीं, आपका तो मुझे पता नहीं, ली टोपी। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि जन्नत की उसे कितनी है जैसे ज़मीन और आसमान के बीच, इस तरह की मिसाल लगी कई बार कहा कि जन्नत की वसअत, और हदीस में आता है कि जन्नत सबसे छोटी होगी, एक हदीस में आता है 7 दुनिया से 7 गुना बड़ी, एक हदीस में आता है 10 गुना बड़ी, और एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत का एक पेड़ इतना बड़ा होगा कि इसको तुम 100 साल पैदल चलोगे तो उसकी छाँव पैदल नहीं, घुड़सवार 100 साल तक उसके साय में चलता रहेगा, 100 साया खत्म, साय भी खत्म। हाँ हदीस है। तो अब मैं मतलब अल्लाह की रहमत के ऊपर उंगली उठा रहा, एक आम इंसान सिर्फ बख्शा जाए वहाँ यही होता है उसके लिए, तो अल्लाह ताला जो है इतने बड़े बड़े मतलब हाँ इनाम देगा। इनाम बता रहा है। हाँ जब भी तो तुम वहाँ की कोशिश करोगे, करेगा क्या इंसान? क्या करेगा वो तो वहाँ देखेगा ना, वहाँ यही चीज़ें छोटी लेगी। अब आप देख लो, जिसके पास अम्पाला हो जाओ उससे ही बड़ी गाड़ी लेने चक्कर में रहे, वहाँ जिसे छोटी जन्नत मिलेगी वो बड़ी के चक्कर में रहेगा। तो छोटी से छोटी जन्नत भी बहुत बड़ी होगी। ये कुरान की आयत है जो तुम बता रहे हैं कि ज़मीन और आसमान की बराबर उसकी वसअत होगी, अर्ज़, लंबाई का तो पता ही नहीं, कुरान ने भी नहीं जिक्र किया। आप किसी भी थान को देख लो, उसका अर्ज़ जो है मान लो 3 फुट या 4 फुट या 2 फुट होगा, और लंबाई कितनी होती है वो मिसाल के तौर पर अल्लाह ने बयान किया कि जन्नत इतनी वसी और बड़ी होगी, तो वहाँ क्यों नहीं करेगा? वहाँ उनके लिए कोई टाइम और स्पेस थोड़ा होगा। यहाँ तो आपको दिल्ली जाने के लिए प्लान करना पड़े गाड़ियों से, वहाँ तो आप सोचोगे यार आप जगह दूसरी जगह किसी और साथियों के साथ फला साथी याद आ गया उसके खेमे में पहुँच गया, तो इस तरह से वहाँ तो ख्वाहिशों के हिसाब से, तमन्नाओं के हिसाब से अल्लाह फैसला करेगा। अच्छा, जैसे कुरान में है कि दर्जे क्यों होंगे, ऊपर वाले नीचे वाले ऊपर वाले एक दूसरे को देखते हैं, तो क्या मुलाकात में मुमकिन होगी? हाँ, कुरान तो ये कहता है कि अगर ख़ानदान वाले कुछ निचले दर्जे में होंगे जन्नत के, और कुछ ऊंचे दर्जे में होंगे, तो अल्लाह पाक निचले दर्जे वालों को ऊंचे दर्जे वाले में करके उन्हें इकट्ठे कर देगा, फैमिली की तरह रहेंगे वहाँ लोग। तो वाला कलमा या तो नबी की मन्नत मानना क्या ये ठीक है? इनके सवाल ये 1.25 लाख कलमा है, 100 नफिल की मन्नत मांगना ठीक, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना नबी ने ये काम करा और ना लोगों ने, बल्कि किसी बल्कि साहबियात थी, हुजूर की कोई बीवी थी है, मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपने आप को बांध रखा था, नफिल पढ़ती थी सारी रात, तो हुजूर ने उन्हें टोक दिया कि नफली इबादत इतनी करो जितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत हो, अल्लाह कभी नहीं थकता तुम्हारी नफली इबादत, तुम थक जाते हो। इसलिए इतनी लंबी लंबी बातें ये कहीं से साबित नहीं है, बिल्कुल। थोड़ा पढ़ो, तवज्जो से पढ़ो, अल्लाह से लौ लगाओ, पहले सबसे पहले फ़राइज़, उसके बाद हल्की फुल्की। देखो हम तो पहले 3 तस्वीर दिया करें ना, हमने उनमें भी कम कर दी, अब मैंने तो बल्कि एक ही कर दी। इसलिए लोगों को फंसाना थोड़ी है, लोगों को निकालना है, बस अल्लाह याद रहे उन्हें। तस्वीर क्या है? एक अल्लाह की याद। हमने तो उन्हें सिर्फ याद दहानी करानी। जब मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी याद, तो 3 तस्वीर की याद दी, 3 तस्वीर दिया कर। मगर जब मैंने गौर व फिक्र करा इस बारे में और कुछ मशवरा भी करा एक दूसरे को, मैंने याद फंसाना नहीं है, लोगों को निकालना है झंझटों से। ये थोड़ी कि आप वो तस्वीर सारा दिन लिए बैठी रहेगी, जब 1.25 लाख कलमा पढ़ना लिए बैठी तस्वीर, और न काम की, न धंधे की, न मर्द की, न बच्चों की। इसलिए बहुत थोड़ी तस्वीर, नमाज़ों पर तवज्जो, कुरान समझने पर तवज्जो, जिनमें होनी चाहिए तवज्जो उनमें तो है नहीं। पढ़ रही 100 नफिल पढ़ी और थक रही, घर के काम कौन करेगा? फिर मियाँ गालियाँ बकेगा। आज तस्बीहात काम नहीं करती, क्या वजह है? ठीक है, सवाल ये आज तस्बीहात काम नहीं करती, क्या वजह है? भाई वजह हमारी ज़बान है, हम गंदे लोग हैं, इसी ज़बान से गीबत, इसी ज़बान से गाली है, इसी ज़बान से जो है लोगों की झूठी बातें करना, वादे झूठे करना। वो असर कहाँ से होगा? वो जो पहले लोग थे वो सच्चे लोग थे, जो तस्बीह पढ़ते थे, अल्लाह के यहाँ पहुँच जाती थी। आज देख लो आप हमारा हाल क्या है, कितने बड़े हम परहेजगार और मुत्तकी सिर्फ हुलिये से बने,
अभी सूरह सफ आने वाली है, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात कही कि वो कहते क्यों जो करते हैं। आज हमने हुलिये बहुत बढ़िया बना रखे है और अंदर हमारे गू भरा पड़ा, जितनी गंदगी है सब मुसलमानों में भरी पड़ी, तो फिर ऐसे लोगों की तस्वीर को कबूल कर रहा अल्लाह। वो मेहमान नवाजी ना करना गुनाह है। इनका सवाल है क्या मेहमान नवाजी ना करना गुनाह है? हाँ भाई बिल्कुल, अभी आ रहा आपके लिए सवाल ना। हुजूर ने फरमाया मेहमान की मेहमान नवाजी ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल हैं, दिल्ली में वहाँ जा रहे हैं। हाँ इसी वजह से सवाल हुआ है आज। आखिरी दुआ है। हाँ हो गया पूरा बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद व अली। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा, ईमान वाली आसान ज़िंदगी, ईमान वाली आसान मौत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है उसे कबूल फरमा, इखलास अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।